Hello everyone. After completing 3 parts of this chapter, we will shift on a part 4 of chapter 6 life process from grade 10 science. In part 4 you have to learn transportation system in plant. Already in 3 videos you complete 3 different process. In video first you complete digestion system. In second you complete respiration. In third you complete transportation system in animal. And now in fourth video you have to complete transportation system in plant. So now we start. So, in this video we have to learn transport of material in. So, how the materials are transported in plant. So, plant have some specialized conducting tissue by which plant has able to complete the work. Now, and that tissues are xylem and phloem. Now, what is xylem and what is phloem? So, we are starting with xylem. So xylem is help to transport water and dissolved material from upward from the roots to different part of the plant. Now what is a xylem works? Xylem works to transport water and dissolved material from downward to upward. मतलब जमीन के नीचे से रूट्स के थ्रू जितना भी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हुआ है उसको नीचे से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ऊपर की डायरेक्शन में पहुंचाने का काम xylem करेगी. Now this xylem is made up of 4 cells, that is trichads, vessel, xylem fiber and xylem parenchyma. Now phloem to distribute food prepared by leaves to different part of the plant. कि आपके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना भी फूड प्रिपेयर किया है that prepared food will be distributed in plants with the help of phloem. कि ये फूड इक्वली पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम phloem करता है. Now, after completing xylem and phloem, we have to learn the difference between them. So, here xylem and phloem. So, xylem transport water and minerals from roots to different parts that we know. At the same way, phloem translocate food in aqueous form from leaf to different part. Translocate that means shift करना, पहुंचाने का काम. Translocate करना मतलब अलग अलग parts तक पहुंचाने का काम. So, translocate food, but फूड को ट्रांसलोकेट करता है बट इन अ फॉर्म ऑफ एक्वेस मतलब लिक्विड फॉर्म में वो क्या करेगा अलग अलग फूड को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करेगा. नाउ xylem हैव अ पैसिव ट्रांसपोर्ट व्हाइल phloem हैव अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ माइट यू हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो xylem हैव अ पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट है जो आपको कॉलेज लेवल में आते हैं बट अभी आप इतना याद रख लो कि ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है बिकॉज दैट ट्रांसपोर्ट इज इन अ फ्लो के जैसे आपने सॉल्यूशंस पढ़े थे कि अलग अलग सॉल्यूशंस क्या होते हैं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक 9th में पढ़े थे आप लोग ने कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन साइड मूव होता है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो सेम वे एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से होता है कि वहां पे एनर्जी की नीड नहीं होती इसीलिए phloem के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट xylem सो xylem हैव अ पैसिव ट्रांसपोर्ट कि उसमें क्या होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है कि भाई नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में चीजें जा रही है. सो इट हैज नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई इट हैज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. Now vessels and trichas are dead cells. As we all know, xylem have vessels, tricha, xylem fiber and xylem parenchyma, the 4 type of cell. So from that 4 cells, vessels and tricha are dead cells. But if you are comparing with phloem, then sieve tube and companion cells are the living cells. So you can say that xylems have a dead cells while phloem have a living cells. Xylem have 4 different kind of tissue where phloem does not have different kinds of cells. Here is the difference is xylem and phloem. Now, after completing xylem and phloem, we have to move on trichads and vessels. Now, what is trichads and what is vessels? So, elongated and thin shape with tapering root. कि trichads are elongated. Elongated मतलब ऐसे लंबा होता है कि वो होगा पतला बट लंबा लंबा होगा. So, पतला and लंबा that is trichads with tapering ends. Now what is tapering ends? Tapering ends मतलब स्टार्टिंग में वो बड़े होंगे बट जैसे जैसे एंड आता जाएगा वहां पे वो क्या होते जाएंगे शार्प और छोटे होते जाएंगे. आप प्लांट के लीफ का ही एग्जांपल ले लो तो जहां से उसकी नोड्स होती है जहां से वो जनरेट हुआ है वहां पे वो बड़ा होगा
बट जैसे जैसे एंड पे आएगा उसका एंड क्या होता जाएगा, टेपर एंड होता जाएगा, दे आर द टेपरिंग एंड्स. देन बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेसल्स, वेसल्स हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस एंड टू एंड. मतलब वेसल के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो एक दूसरे के एक के एंड के पास दूसरा क्या होता है, मर्ज होता है. मतलब वहां पे उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है एंड टू एंड, एक के साथ एक क्या होते हैं, अटैच होते हैं. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रीचार्स, ट्रीचार्स हैव थिक सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज अ लिक्विफाइड वॉल्स. की ये उनकी सेल वॉल क्या होगी, थिक होगी एंड लिक्विफाइड सेल होगी विथ पिट्स अलोंग द थिक सेल वॉल. कि ये सेल थिक सेल वॉल के साथ वहां पे प्रेजेंट होंगे. एट द सेम वे वेसल्स आल्सो हैव लिक्विफाइड वॉल विथ पिट्स, बट कंपेयरिंग टू ट्रीचार्स वेसल हैव लेस थिक सेल वॉल. ट्रीचार्स की सेल वॉल ज्यादा थिक होती है, वेसल्स की सेल वॉल इतनी थिक नहीं होती है. नाउ टॉकिंग अबाउट transports, here we are talk about water. So water transport through pit from one tree charge to another. कि water का transport किस तरीके से होगा, pits की help से होगा. But if you are talking about vessels, vessels have a open ended cell wall, because already we'll talk in first point that they have end to end placement. So they have open ended wall, so motor will move one vessel to another vessel from these walls only. Then clear what are the difference between recharge and vessels. Now transport of water and dissolved minerals in plant. Here is a flow diagram of transportation. Already ये आप लोग ने पढ़ ही लिया है, but in a flow diagram में that roots and hair absorb water from soil or else dissolved mineral from soil. Now that dissolved minerals will move in xylem of roots. So from that roots they'll move on स्टेम. स्टेम मतलब कि वो जो बीच में आपको जो सेंटर वाला पोर्शन दिखता है ना, ट्रंक जैसा एंड ब्रांचेस वगैरह, दैट ऑल आर द स्टेम के पोर्शन में, और वहां से फिर वो लीव्स में जाता है. देन अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपके रूट्स ने वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया. कहाँ से एब्जॉर्ब किया, सॉइल में से. अब ये एब्जॉर्ब होके रूट्स में आ गए, मतलब जाइलम, रूट्स के जाइलम में आ गए. रूट्स में से वो कहाँ पे जाएंगे, स्टेम में जाएंगे, जाइलम ऑफ स्टेम. और स्टेम से फिर वो अलग अलग लीव्स तक पहुंच जाएंगे. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ जाइलम, दैट हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम. नाउ after completing all these you have to learn what is transportation, that what word transpiration means. Now transpiration is nothing else but evaporation of water from the surface of leaves. मतलब कि लीव्स की सरफेस में से वाटर का इवोपरेट होना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. डन. नाउ roots take up water again due to transpiration pull. Now first of all you have to learn what is transpiration pull and how transpiration pull occurs. So transpiration pull is nothing else but a result from evaporation or excretion of water from surface of cell in a लीव्स. कि ट्रांसपिरेशन पुल होता क्या है, कि ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीव्स की सरफेस के ऊपर से वाटर का इवोपरेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो रहा है. अब ये ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होने की वजह से क्या होगा, लीव्स में से वाटर इवोपरेट हो गया, तो लीव्स में वाटर की कमी आ गई. तो अब नीचे सॉइल में वाटर है और ऊपर लीव्स के पास वाटर नहीं है, तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हुआ. और ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होने का एक यही फायदा है, दैट इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट. की इस तरीके से हाई और लो कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होगा कि रूट्स अच्छे से वाटर को अपटेक करेगा और वापस से साइलम के थ्रू वाटर ऊपर तक पहुंच पाएगा और वाटर का फ्लो इजीली चलता रहेगा. सो दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन पुल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ here is an image of your stomata, that how stomata opens and how stomata close, and what are the important of stomata's opening and stomata's closeness. So here you can say a open image of stomata and here is a close image of stomata. Already you will know that what is this. These are the guard cells. Just see my red pointer. These are the guard cells which are control the closing and opening of stomata. Here the guard cells made space between them, that's why the stomata is open, but here guard cells are joined together, that's why stomata are closed, and rest of the things are same as like a plant
cell like chloroplast, vacuole, nucleus, cell wall, epidermis, thin wall, thick wall, etc. But when the guard cells are open, that means इनके बीच में क्या होगी, जगह होगी. तो जगह होने की वजह से वाटर एंड मिनरल सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. अब ये इमेज यहाँ पे रखने का मेन रीजन ये है कि आपको ट्रांसपीरेशन समझाना है. ट्रांसपीरेशन लीव्स के ऊपर से होता है, इसीलिए ये इमेज यहाँ पे डाली है कि स्टोमाटा लीव्स के अंदर ही होते हैं. ट्रांसपीरेशन तभी होगा जब ये स्टोमाटा ओपनिंग पोजीशन में होगा. स्टोमाटा खुलेगा तभी तभी लीव्स के अंदर वाटर इवोपरेट होके बाहर निकल पाएगा. अगर ये स्टोमाटा बंद हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा. देन ना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के वाटर के साथ साथ और मिनरल्स के साथ साथ फूड और अलग अलग सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा. तो इट इज डन बाय फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन. So first of all, what is photosynthesis? So leaf produce food with the help of light in a process called photosynthesis. As we all know, plant is a autotrophs and they can make their own food with the help of photosynthesis. But in photosynthesis, they also require some things, that is light, water, sunlight and chlorophyll. With the help of these things, plant will prepare them all on food and it will be transported in different part. Now what is translocation? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर हो गया, बट वो प्रिपेयर हुआ फूड अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचना तो चाहिए. तो ये प्रिपेयर हुए फूड को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है ना, कि जिस प्रोसेस से होता है, दैट इज अ ट्रांसलोकेशन. फूड प्रोड्यूस इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. देन कि जो लीव्स के अंदर फूड बना है वो अलग अलग पार्ट तक पहुंचने का काम जहां से होता है, जो से होता है, दैट इज ट्रांसलोकेशन. ना लीव फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लिया, वो फूड ट्रांसलोकेशन के थ्रू अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच गया. देन so here our part 4 video is completed. In this video we will study about the transportation in plants, that how plant take minerals and water for their transport and how food is transported. Then I hope you all understand the video. Thank you everyone.